الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ والی کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے؟ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے ہیں سارے؟ کیا بات۔ محمد مصطفیٰ والی کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے؟ محمد سر کو رکھ سجدے علایا سی، امت میری کو نہ بخشی تا سر اٹھاون دی کیا لوڑ ہے؟ خدا خود لا مکانہ تے سڈا مدنی کو دسیا سی، میرے مدنی امت تیری رحمت میری جنت میری، غم کھاون تے شرماون دی کیا لوڑ ہے؟ اور تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی۔ مختصر ترین حمد و ثنا کے بعد سٹیج پہ موجود علماء کرام، اور یہ جو سٹیج ہے یہ سٹیج کوئی عام سٹیج تو ہے نہیں، یہ ختم نبوت کے دیوانوں کا سٹیج ہے اور یہ مجاہدین کا سٹیج ہے۔ یہاں پہ بات کرنی بھی اتنی آسان نہیں ہے، لیکن سامعین محترم مجھے حکم ملا تو بس صرف 3 سے 4 منٹ کی حاضری جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی اسی کا مفہوم عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اوپر جو سایہ ہے وہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی کا ہے، اور بابا جی خادم حسین رضوی اپنے کارکنان کی یہ تربیت کر کے گئے ہیں کہ چاہے زیادہ ہوں یا کم ہوں ہم گھبرایا نہیں کرتے، میدان کوئی ہو جگہ کوئی ہو مقام کوئی ہو، ہم حضور کی عزت کی بات اور اسلام کی غیرت کی بات باباؤں کے دہل اور اعلیٰ اعلان ڈنکے کی ٹوچ پہ کیا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم اللہ کے فضل سے مجھے بھی ایک مرتبہ موقع ملا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور اس وقت پی پی 84 میں ایک سیٹ خالی ہوئی تھی کہ بھائی ایک ایم پی فوت ہو گئے، تو پھر سیٹ خالی ہوئی تو الیکشن لڑنے کے لیے بات آئی، تو پھر دوستوں کے حکم پہ مجھے حکم ملا کہ آپ یہاں سے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور آپ نے یہاں پہ ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو سامعین محترم جب تحریک کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور پھر حضور کے جرت مند غلاموں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی تحریک آج تک ایسی نہیں جو ایک مرتبہ کالعدم ہو جائے تو واپس آ جائے، اگر واپس آئی یا آ سکتی تھی تو ایک ہی تحریک ہے، اس تحریک کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم اس وقت مجھے حکم ملا کہ آپ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو سامعین محترم بہت سارے معاملات تھے، ہر طرح کے ایس ایچ او حتیٰ کہ ڈی پی او سب یہی چاہ رہے تھے کہ بندے کو گرفتار بھی کرنا ہے اور کمپین بھی نہیں کرنی دینی، اور سامعین محترم حالات کچھ عجیب و غریب تھے۔ اگر کوئی شخص لبیک کا صرف جھنڈا لگاتا یا نعرہ لگاتا یا جس کے گھر کے اوپر لبیک کا جھنڈا لگا ہوتا اس کو اٹھا لیا جاتا اور سامعین محترم اس کو 1 مہینے یا 3 مہینے کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا۔ پھر اللہ کے فضل سے بابا جی کی نگاہ سے مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ یہ الیکشن وڈرا کر دیں، میں نے کہا ایک ہی صورت ہے وڈرا کرنے کی، یا تو مجھے گولی مار کے شہید کیا جائے، اگر میں زندہ رہوں گا تو آخری دن تک حضور کے نام کا الیکشن ہے انشاءاللہ لڑ کے دکھاؤں گا۔ اور سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بابا جی کی دی ہوئی جرت سے، پہلے کوئی جرت نہیں تھی، بابا جی کی باتیں سنی، بابا جی کی مجلس میں بیٹھے، بابا جی کے خطابات سنے تو پھر یہ جرت آئی کہ یا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے، زندہ رہے تو بابا جی کے اس مشن کو لے کے چلیں گے، اگر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہی ہے کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اور سامعین محترم پھر اللہ کے فضل سے وہ الیکشن ہوا،
साद भाई उस वक्त गिरफ्तार थे, फिर आप रिहा हो के आ गए, इलेक्शन खत्म हुआ, फिर सैयद सफदर शाह साहब यहाँ पे सरगोदा के अमीर मौजूद हैं, फिर साद भाई से मुलाकात हुई तो आप फरमाने लगे ताहिरी साहब आपने इलेक्शन लड़ा था, जिस दिन में हमारी कैंपेन में साद भाई आए थे 10 अप्रैल थी और आप 12 को गिरफ्तार हो गए थे, तो कहा कि आपकी कैंपेन तो मैं कुछ करके आया था, अभी आखिरी जलसा करना था, हम गिरफ्तार हो गए थे, आप बताओ इलेक्शन लड़ा था? मैंने कहा लड़ा था। उन्होंने कहा कब तक? मैंने कहा सागरा। उन्होंने कहा आखिरी दिन तक। मैंने कहा अल्लाह के फजल से आखिरी दिन तक इलेक्शन भी लड़ा है और पूरे इलाके में कैंपेन भी की है और कुफर की आंखों में आंखें भी डाली है और अल्लाह के फजल से हजारों वोट भी लिए हैं और बताया है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह। सामीन मोहतरम, फिर एक और बात जो बड़ी खास बात है और खास लोगों के लिए बात है, ये मोहब्बत की बात है और मोहब्बत के लिए चांद दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साल पे गाया नहीं जाता। जिस दिन मुझे हुक्म मिला कि आप नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, वल्लाह मिंबर मुस्तफा पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा छोटा भाई वो कारोबार करता है, मुझे क्या कहते सुबह कहता है तहरी साहब रात को बाबा जी मेरे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि कारी साहब को कहो यहाँ पे एक बड़ा जलसा करवाए, हमने खिताब करना है। तो मैंने कहा यार ये ऐसी बात तो कोई नहीं अभी तक, मैं तुम कैसा ख्वाब बता रहे हो? मैंने कहा मेरा मोबाइल उठा के लाओ, चार्जिंग पे लगा हुआ था। जब मैंने मोबाइल उठा के देखा तो फिर हुक्म आया हुआ था कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के लाहौर आ जाए। हम खुद कुछ नहीं करते बल्कि हमसे जो कुछ भी होता है अल्लाह के फजल से वहां से हुक्म आता है, फिर हम करते हैं जो भी करते हैं। बहरहाल जो हदीस पाक मैंने तिलावत की उसका मफहूम अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा। फरमाया अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत बख्शी है, मेरे करीम आका ने फरमाया तो औलाद को 3 बातें सिखानी है। अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखानी है। सबसे पहले अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत बख्शी है, हुक्म नबी के मुताबिक अपने औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखानी है। सामीन मोहतरम, ये नबी की मोहब्बत का फैजान है। ये रात का ये वक्त है, अजीबो गरीब मौसम है और हुजूर के दीवाने बैठे हैं और खड़े हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। ये वही फैजान है कि अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखानी है। वहुब्बा आले बैत ही, और हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को मेरे अहले बैत की मोहब्बत भी सिखानी है। क्या बताऊं कि मेरा हुसैन क्या है? हुसैनी हाथ उठा के जवाब देंगे। क्या बताऊं कि मेरा हुसैन क्या है? खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, अहले ईमान शाह मशरिकैन कहते हैं, जिसे खुदा के सिवा न कुछ याद रहा, जुबान इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। क्या बताऊं कि मेरा, सारे एक दफा बोले मैं आगे शेर कंप्लीट कर दूंगा। क्या बताऊं कि मेरा हुसैन क्या है? सवाल लिख दे, जवाब लिख दे, वफा की पूरी किताब लिख दे, बगैर पानी के जो खिल उठा था हुसैन को वो गुलाब लिख दे। क्यों कि गला नाल ते हर कोई लाई फिर दे, लाके तोड़ निभानियां औखिया ने, गला नाल आखना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम चूंकि अहले सुन्नत के घर पैदा हुए, आप भी इसी तरह पैदा हुए होंगे और हमने भी यही सुना था कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन सामीन मोहतरम, दर्स निज़ामी पढ़ने के बाद भी और सामीन मोहतरम दुनियावी तालीम भी हासिल करने के बाद भी इस बात का पूरा पता नहीं था कि क्या रियल सीक्रेट है, मतलब क्या है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हाँ, मुझे उस दिन पता चला जब मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन थी, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का दरवाजा था, अजीबो गरीब कैफियत थी। आज वो जलील होने वाला जालिम जाबिर जो कहता था उठा लो और अंदर डाल दो और सबको कड़ियां लगा दो, इनको कदम कर दो, खत्म कर दो, ये नारे लगाने वाले अजीबो गरीब कैफियत थी। उन्होंने हुजूर के गुलाम जो कि ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे, उन पे गोलियां चलाई। मैं एक वाक़या अर्ज करने जा रहा हूं। एक लड़का तकरीबन उसकी उम्र 17 या 18 साल होगी, हुआ क्या उसके पेट में गोलियां लग गई और रोजा था, गालिबन रमजान का दूसरा रोजा था। जब उसको पेट में गोलियां लगी, खून
बह रहा था और हमने कहा ये पानी पी लें, रोजा तोड़ दें। वो कहता नहीं तोड़ता रोजा। हमने जिद की कि रोजा तोड़ो, वो कहता रोजा नहीं तोड़ता। क्यों? कि गुलामी रसूल में सामीन मोहतरम, मुझे उस दिन पता चला कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का असल मकसद क्या होता है। गला नाल ते हर कोई लाई फिर दे, गला नाल नारा ला देना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बहरहाल मैं बात अहले बैत की कर रहा था। गला नाल ते हर कोई लाई फिर दे, लाके तोड़ निभानियां औखियां ने, असगर हत्थां दे विच कुहा देना, नाले बाई कटानियां औखियां ने, अकबर जवान दी लाश उत्ते हन्नू ना वगानियां औखियां ने। यारो छातियां नेज़े दी नोक उत्ते पूए गैर दे पानियां औखियां ने। क्या बताऊं कि मेरा हुसैन क्या है, खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं। आखिरी बात, किबला रिजवान सैफी साहब बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत के दीवानों ने 10,000 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी और उसके बाद वोट की ताकत से शाह अहमद नूरानी साहब आपका आप लायबिल, और फिर अल्लाह के फजल से आज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी की जहां कहीं गंदखाने हैं, जहां कहीं वो शायर इस्लाम को यूज करने की कोशिश करते हैं, हुजूर के गुलाम हिकमत अमली से, हिकमत और बसीरत से कानून का दरवाजा खटखटा के उनके सारे मामले खत्म करवा देते हैं। तो नूरानी साहब का एक वाकया आपके सामने अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा। नूरानी साहब एक मरतबा इंग्लैंड गए, बड़ा प्यारा वाकया याद रखने वाला। आप एक मरतबा इंग्लैंड गए, वहां पे शाह साहब आपने एक काफिर को मुसलमान किया। वो नया मुसलमान था, उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि भाई इस्लाम है क्या, कलमा तो पढ़ चुका हूं, इस्लाम क्या है। काश के हमारे दिल में ये दर्द उठ जाए कि भाई है इस्लाम है क्या, काश की दर्द उठ जाए। बहरहाल तो पूछेगा इस्लाम क्या है, तो नूरानी साहब से उसने कहा कि प्लीज मिस्टर नूरानी एक्सक्यूज मी एंड फैक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का खाका दीजिए, इस्लाम है क्या। तो नूरानी साहब से आपने फरमाया प्लीज स्पेल द वर्ड ऑफ इस्लाम, कि लफ्ज़ इस्लाम की स्पेलिंग करो। उसने कहा ISLAM इस्लाम। आपने फरमाया आई मीन आई, एस मीन शल, एल मीन लव, ए मीन ऑलवेज, एम मीन मोहम्मद। इस्लाम इज अ कंप्रोमाइज व्हिच मीन दैट आई शैल ऑलवेज लव मोहम्मद। इस्लाम खुदा के साथ मुआहदा है, बात है, समझौता है, वादा है। क्या वादा है? जब तक तन में जान रहेगी मुस्तफा पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। जब तक जिंदा रहूंगा मोहम्मद की मोहब्बत पे रहूंगा। क्यों? कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर वो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मेरी बात यहाँ पे खत्म हो रही है। ऐ मर्दान खुदा, इस चरखे से तमगर को हिला दो। इलेक्शन चाहे सन 2027 में आए या 28 में आए या कल आए, जब भी आए, हम हर वक्त इलेक्शन में हैं। क्यों? कि हमारा पैगाम वो है कि नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है और खत्म नबूवत पे पहरा देना, खत्म नबूवत पे पहरा देना हर सांस के साथ फर्ज है। तो फिर सामीन मोहतरम किबला सैफी साहब ने बड़ी दिल पे लिख लिख के ले जाने वाली बात कह दी है। हम हर बात, हर वक्त, हर लम्हा अपनी तंजीम को और जमात को मंजूर करने के लिए मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। इस पैगाम के साथ ऐ मर्दाने खुदा, इस चरखे से तमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोर से बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीर हो, पिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला।